So student, anomalous Zeeman effect, very important topic, fourth unit. After discovery of normal Zeeman effect, Zeeman and his co-workers showed that the lines of other series bracket में not singlets split not to the simple triplet but to a group of 4 or more components, and as the classical theory was unable to account for this, it was labeled as anomalous Zeeman effect. Why anomalous Zeeman effect is called anomalous? What the word anomalous implies? Anomalous Zeeman effect को anomalous Zeeman effect क्यों कहते हैं? क्योंकि क्लासिकल थ्योरी anomalous Zeeman effect को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी. Anomalous Zeeman effect can only be explained by quantum physics, while normal Zeeman effect can be explained both by classical physics as well as quantum physics. The lines are, however, still symmetrical about the position of undisplaced line, and the lines are polarized parallel or perpendicular to direction of magnetic field. वही जो lines which are polarized perpendicular to magnetic field are sigma components, and the lines which are polarized parallel to magnetic field are pi components. We now consider satisfactory explanation of Zeeman effect with the help of semi-classical vector model. What is semi-classical vector model? The vector model of one electron system. Student, एक मैं बात क्लियर कर दूं. नॉर्मल जीमन इफेक्ट में स्पिन एंगुलर मोमेंटम वेक्टर 0 था, स्पिन क्वांटम नंबर 0 था. नॉर्मल जीमन इफेक्ट वहीं पे लागू होता है जिन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे. लेकिन anomalous जीमन इफेक्ट में स्पिन क्वांटम नंबर इज 1/2. Anomalous Zeeman effect में spin quantum number is finite. Spin quantum number is not equal to 0. यानी anomalous Zeeman effect में spin is for one valence electron spin is 1/2 क्योंकि electron is fermion. In the absence of magnetic field, the orbital angular momentum vector L star and spin angular momentum vector S star precess with uniform angular speed about their resultant J star. आप ये डायरेक्शन फिगर देख रहे हैं. When atom is placed in weak magnetic field, the magnetic moment mu suffix j associated with the total mechanical moment P suffix j is equal to J star into H over 2 pi causes the atom to precess like a mechanical top around the field direction as follows. ये आप देखेंगे ये एस स्टार है, ये एल स्टार, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ये टोटल एंगुलर मोमेंटम. एल स्टार और एस स्टार दोनों की प्रिसेशन आप देख रहे हैं अबाउट जे स्टार है. जे स्टार इज रिजल्टेंट ऑफ एल स्टार एंड एस स्टार. एल स्टार की प्रिसेशन जे स्टार के अबाउट, एस स्टार की प्रिसेशन जे स्टार के अबाउट. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप देखिए ये दिस इज कोन ट्रेस्ड बाय एल स्टार, दिस इज कोन ट्रेस्ड बाय एस स्टार, दिस इज कोन ट्रेस्ड बाय जे स्टार. जे स्टार की प्रिसेशन जो है अबाउट कैपिटल बी है और जे स्टार को एच ओवर 2 पाई से मल्टीप्लाई करो तो वो मैकेनिकल मोमेंट, टोटल मैकेनिकल मोमेंट, टोटल मैकेनिकल मोमेंट का दूसरा नाम है टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. सो द क्वांटम कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन दिस मोशन इज दैट प्रोजेक्शन ऑफ इस जे स्टार का हम प्रोजेक्शन लेंगे किसके ऊपर? फील्ड डायरेक्शन के ऊपर, लाइक दिस. ये जे स्टार का प्रोजेक्शन होगा ये, और इस प्रोजेक्शन की जो वैल्यू आएगी वो m सफिक्स j, यानी आप ये कहेंगे अगर तो ये j स्टार इंटू एच ओवर 2 पाई है तो ये प्रोजेक्शन m सफिक्स j इंटू एच ओवर 2 पाई है. सो द क्वांटम कंडीशन इम्पोज्ड अपॉन दिस मोशन इज दैट projection of angular momentum j star h over 2 pi on the field direction capital B will take only those values given by m suffix j h over 2 pi, and we know m suffix j की values जो है that runs from minus j to j, and m suffix j की जो total possible values है वो 2j plus 1 है. और यहाँ पे जो कि anomalous Zeeman effect में single valence electron यानी spin is half, तो naturally j की जो values आएंगी वो half integral values आएंगी और j की वैल्यू सॉरी m सफिक्स j की वैल्यू जो आएंगे वो हाफ इंटीग्रल वैल्यू आएंगी रनिंग फ्रॉम माइनस j टू j. तो ये फिगर बनानी बहुत ही जरूरी है. 3 कॉन्स आर देयर. एक और आप इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं.
Yes. So this is cone traced by J star और J star की precession D के about है, while L star और S star की precession J star के about है. So अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. तो anomalous Zeeman-Frick डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस करिए. वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, सेमी क्लासिकल वेक्टर मॉडल. तो स्टूडेंट एम सफिक्स जे की वैल्यू माइनस जे से लेके जे थी, दैट इज डिस्क्रीट ओरिएंटेशन इन स्पेस and small change in energy due to precession gives rise to 2j plus 1 discrete Zeeman levels whose separations are determined by field strength capital B and magnetic moment mu suffix j of an atom. In a field free space, an energy level is defined by three quantum numbers small n, small l and small j. While in weak magnetic field, three quantum number तो आएंगे small n, small l, small j. Fourth quantum number m suffix j is also needed to define an energy state. Magnetic moment of a bound electron. To determine separations between Zeeman levels, it is essential that we first determine total magnetic moment of an atom. To start with, we assume that atom core and the nucleus have zero magnetic moment as well as zero mechanical moment, so that any moments attributed to an atom are due to single valence electron. The justifications for these assumptions will come later. According to classical theory, ये पहले भी हमने derive किए थे, ratio of magnetic moment to mechanical moment. Another name of mechanical moment is angular momentum. अभी हम बात कर रहे हैं orbital magnetic moment over orbital angular momentum, which is due to orbital motion of electron around the nucleus. Orbital magnetic moment is mu suffix l. Orbital angular momentum is p suffix l. और g suffix l क्या? Orbital g factor little e over 2 m suffix e. ये डेरिवेशन पहले करवाई हुई है और ऑर्बिटल g फैक्टर की वैल्यू 1 होती है. Therefore mu suffix l or p suffix l is little e over 2 m suffix e. Symbols have their usual meaning. For spinning electron, spin magnetic moment divided by spin angular momentum यानी p suffix s. वही है. एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या है? मैकेनिकल मोमेंट. इसमें स्पिन g फैक्टर आएगा लिटल e over 2 m suffix e और स्पिन g फैक्टर इज 2 लिटल e over 2 m suffix e. तो ये 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, लिटल e over m suffix e. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम बना रहे हैं, स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक एंड मैकेनिकल मोमेंट दैट विल बी जस्ट शोन. तो स्टूडेंट एनोमलस ज़ीमन इफेक्ट में ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है. ये डायग्राम आई शैल मेक यू अंडरस्टैंड. ये जे स्टार है. जे स्टार इज रिजल्टेंट ऑफ एल स्टार एंड एस स्टार. एल स्टार आप जानते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट जो है वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट. तो ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ये म्यू एल इस एल स्टार के अपोजिट है. इसी प्रकार से एस स्टार स्पिन एंगुलर मोमेंटम और म्यू सफिक्स है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम के अपोजिट है. और डायग्राम बनाते वक्त ये ध्यान रखेंगे म्यू सफिक्स एस का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको बड़ा दिखाना है एज कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू सफिक्स एल. ये डायग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैं फिर बता दूं, आप देखेंगे एरो का जो साइज है म्यू सफिक्स एस जो है वो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का एरो का साइज ज्यादा है. ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू सफिक्स एल के एरो का साइज छोटा है. ये डायग्राम बनाते हुए ध्यान रखेंगे. व्हाई? बिकॉज ये रीजन मैंने इधर लिखा हुआ, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, इज इनवेरिएंट. एल स्टार और एस स्टार का रिजल्टेंट जे स्टार. एल स्टार का एरो का साइज ज्यादा दिखा है, एस स्टार के एरो का साइज छोटा दिखा है. एस स्टार छोटा, म्यू एस बड़ा, एल स्टार बड़ा, म्यू एल छोटा. नीचे जो है जितने भी म्यूज दिखाए हुए हैं और ऊपर हमने एंगुलर मोमेंटम दिखाए हुए हैं. एल स्टार की प्रिसेशन जे स्टार के अबाउट, एस स्टार की प्रिसेशन जे स्टार के अबाउट. जे स्टार एल स्टार एस स्टार का रिजल्टेंट है.
फिर बता दूं म्यू सफिक्स एल एल स्टार के अपोजिट, म्यू सफिक्स एस एस स्टार के अपोजिट। म्यू सफिक्स एस का एरो बड़ा साइज का दिखाएंगे, ये म्यू सफिक्स एल का जो एरो है ब्लैक कलर से जो मैंने दिखाया ये छोटा है, ये जो डॉटेड लाइन ब्लैक कलर की है म्यू सफिक्स एल है। और इसी प्रकार से जे स्टार के अपोजिट म्यू सफिक्स जे, एल स्टार के अपोजिट म्यू सफिक्स एस, एल स्टार के अपोजिट म्यू सफिक्स एल। ये जितने भी म्यूज हैं ये सब मैग्नेटिक मोमेंट है। म्यू सफिक्स जे जो है दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद टोटल एंगुलर मोमेंटम। म्यू सफिक्स एस इज मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये स्पिन मोशन की वजह से है और ये ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट म्यू सफिक्स एल। सभी जो आप देखेंगे ये प्रिसेशन दिखाई है, एल स्टार ये प्रिसेशन है, एल स्टार की प्रिसेशन जे स्टार के अबाउट, एस स्टार की प्रिसेशन जे स्टार के अबाउट। म्यू सफिक्स एल की प्रिसेशन नीचे जितने भी म्यूज हैं उन सब की प्रिसेशन म्यू सफिक्स जे के अबाउट। म्यू सफिक्स एल की प्रिसेशन म्यू सफिक्स जे के अबाउट। म्यू सफिक्स एस की प्रिसेशन म्यू सफिक्स जे के अबाउट। म्यू सफिक्स एलएस की प्रिसेशन बी म्यू सफिक्स जे के अबाउट। और आप ये देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये म्यू एल और ये म्यू एस। पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड इस म्यू एस के पैरेलल ये म्यू एस, इस म्यू एल के पैरेलल म्यू एस। को इनिशियल पॉइंट के थ्रू जो ये डायगोनल आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से, ये देखिए जिस पे पेन मैं होवर कर रहा हूं, को इनिशियल पॉइंट के थ्रू से जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो इस म्यू सफिक्स एस और म्यू सफिक्स एल का रिजल्टेंट है, जिसे हमने बोल दिया म्यू सफिक्स एल एस। कहने का मतलब म्यू सफिक्स एल एस वेक्टर इज वेक्टोरियल एडिशन ऑफ म्यू सफिक्स एल वेक्टर म्यू सफिक्स एस वेक्टर। तो म्यू सफिक्स एल एस वेक्टर म्यू सफिक्स जे वेक्टर की लाइन में नहीं है। म्यू सफिक्स एल एस आप देखेंगे म्यू सफिक्स जे के साथ टिल्टेड है, कुछ एंगल पे है। तो म्यू सफिक्स एल एस की प्रिसेशन ये दिखाई है, ये म्यू सफिक्स एल एस की प्रिसेशन काउंटर क्लॉकवाइज, ये म्यू सफिक्स एस की प्रिसेशन, ये म्यू सफिक्स एल की प्रिसेशन, तीनों प्रिसेशन एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन तीनों की तीनों प्रिसेशन म्यू सफिक्स जे के अबाउट। ये म्यू सफिक्स जे है। इस डायग्राम को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन वी डिराइव लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर एंड व्हेन वी डिस्कस एनोमलस जीमन इफेक्ट। ये फिगर किस चीज का फिगर है? हर फिगर का कैप्शन होता है, टाइटल होता है। ये फिगर है वेक्टर मॉडल शोइंग द मैग्नेटिक मोमेंट, ये देखो मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैकेनिकल मोमेंट। ऊपर तमाम जितने दिख रहे हैं ये मैकेनिकल मोमेंट, बी इट एल स्टार, एस स्टार, जे स्टार, ये मैकेनिकल मोमेंट। मैकेनिकल मोमेंट का दूसरा नाम एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये फिगर बनाते वक्त सिर्फ ये ध्यान रखना है म्यू एस ग्रेटर देन म्यू एल। सो हियर वी सी दैट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट यानी म्यू सफिक्स एल एस is not in line with the resultant mechanical moment J star H over 2 pi। जो रिजल्टेंट मैकेनिकल मोमेंट है, ये रिजल्टेंट मैकेनिकल मोमेंट या टोटल एंगुलर मोमेंटम J स्टार म्यू सफिक्स एल इस J स्टार की सीध में नहीं आ रहा है, ये J स्टार है और ये देखो किसी एंगल पे है। Since resultant mechanical moment J star H over 2 pi is invariant, because mu suffix s or p suffix s is not equal to mu suffix l or p suffix l। आपको याद होगा mu suffix l और p suffix l, mu suffix l और p suffix l is literally equal to m suffix e, क्योंकि यहाँ पे g suffix l था, वो ऑर्बिटल g फैक्टर था, वो 1 था। और mu suffix s और p suffix s, म्यू सफिक्स एस और पी सफिक्स एस में यहाँ पे लिटरली 2 m सफिक्स ई तो है, लेकिन ये जो 2 है, ये जो डबली फैक्टर है, ये है जी सफिक्स एस, ये है स्पिन जी फैक्टर विच इज गिवन बाय स्पिन जी फैक्टर की वैल्यू जो 2 होती है दैट इज गिवन बाय रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि स्पिन जी फैक्टर जी सफिक्स एस की वैल्यू 2 होती है। तो ये रेशियो आपस में बराबर तो नहीं है। आप देख लीजिए म्यू सफिक्स एस और पी सफिक्स एस में तो डबली फैक्टर आ रहा है और म्यू सफिक्स एल और पी सफिक्स एल में तो ई और 2 m सफिक्स ई, यहाँ पे तो 1 है। इसका मतलब म्यू सफिक्स एस और पी सफिक्स एस
is double of mu suffix l और p suffix l बराबर नहीं है, तो इसीलिए mu suffix s बड़ा दिखाया था. Since resultant mechanical moment J star HO 2 pi is invariant, anything which is multiple of HO 2 pi is angular momentum. L star के साथ HO 2 pi तो orbital angular momentum, J star के साथ HO 2 pi तो total angular momentum, S star के साथ HO 2 pi तो spin angular momentum. J star किसके बराबर होता है? root J into J plus 1. L star is equal to root L into L plus 1. ऐसे. So L star की प्रिसेशन देखें J star के अबाउट, S star की प्रिसेशन J star के अबाउट, mu suffix L की प्रिसेशन mu suffix J के अबाउट, mu suffix S की प्रिसेशन mu suffix J के अबाउट, mu suffix LS की प्रिसेशन mu suffix J के अबाउट. So कहने का मतलब, और mu suffix J तो J star के 180 पे है ना, तो कहने का मतलब सभी प्रिसेशन 5 प्रिसेशन आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 प्रिसेशन है, पांचों की पांचों प्रिसेशन J स्टार एंड म्यू J के अबाउट है. बस ये है कि इन एंगुलर मोमेंटम की प्रिसेशन J स्टार के अबाउट है और इन म्यू की प्रिसेशन म्यू J के अबाउट है. म्यू J है तो J के 180 है. सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रिसेशन only the component of mu suffix ls parallel to J star mu suffix ls को अगर आप रिजोल्व करो तो mu suffix ls की टेल पे एक्सिस का पेयर अगर बनाए तो mu suffix ls अगर आप देखें, मैं इसको शिफ्ट करता हूँ इधर, ये mu suffix ls और इसकी टेल पे एक्सिस का पेयर बनाए तो ये आ जाएगा. ये कंपोनेंट जो है ये इस म्यू J के पैरेलल हो जाएगा और ये कंपोनेंट इस म्यू J के परपेंडिकुलर हो जाएगा. ये म्यू सफिक्स l है, पैरेलल वेक्टर कैन बी शिफ्टेड. तो उसने यही कहा ओनली द कंपोनेंट ऑफ म्यू सफिक्स, ये कंपोनेंट्स है म्यू सफिक्स l के, ये दो कंपोनेंट है. ये कंपोनेंट जो म्यू सफिक्स ls का है जो J स्टार की सीध में है, so only the component of mu suffix ls parallel to J star contributes to magnetic moment of an atom. That is, if we resolve mu suffix ls into two components, namely this and this, one parallel to J star, ये J star है, ये J star की सीध में ये component parallel to J star, and other perpendicular, ये वाला component J star के perpendicular है, average is out to 0. ये वाला कंपोनेंट जो J स्टार के परपेंडिकुलर है that will average out to 0. लेकिन जो कंपोनेंट है म्यू सफिक्स l का, वही कंपोनेंट रोल प्ले करेगा मैग्नेटिक मोमेंट की कंट्रीब्यूशन में जो कंपोनेंट J स्टार की सीध में है, यानी J स्टार के साथ अलाइंड है. सो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ म्यू सफिक्स l as average out to be 0 due to continual change in direction. पैरेलल कंपोनेंट जो म्यू सफिक्स ls का है म्यू सफिक्स J स्टार की सीध में जो, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं बता रहा हूँ. उसके लिए आपको जायरोमैग्नेटिक रेशियो पहले लिखने होंगे. एक ऑर्बिटल जायरोमैग्नेटिक रेशियो इज स्पीड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम. तो ये ऑर्बिटल मैकेनिकल मोमेंट, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, लिटिल यो 2m सफिक्स e. तो म्यू सफिक्स l इसके बराबर आ गया. p सफिक्स l ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है which is written as l star ho 2 pi, लिटिल यो 2m सफिक्स e as it is. इनको मल्टीप्लाई किया, लिटिल h और 4 pi m सफिक्स e. ये हम सब जानते हैं ये बोहर मैग्नेटोन है. तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट किसके बराबर आएगा? Anything which is multiple of Bohr magneton is magnetic moment. Anything which is multiple of h over 2 pi is angular momentum. So mu suffix l का बेसिक क्वांटा बोहर मैग्नेटोन, एंगुलर मोमेंटम का बेसिक क्वांटा h over 2 pi, चार्ज का बेसिक क्वांटा लिटिल e. तो mu suffix l is l star into बोहर मैग्नेटोन and l star is root l into l plus 1. Similarly mu suffix s स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, p suffix s स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पे g suffix s which is spin g factor
whose value is written by use of relativistic quantum mechanics या Dirac relativistic theory. Little u2m suffix e p suffix s is s star ho2 pi और ये w into eo2m suffix e, तो ये 2 पहले लिख दिया s स्टार लिटरली ho2 ये मल्टीप्लाई करके ये हम जानते हैं ऑर्गेनाइज ये रिकॉग्नाइज कर रहे हैं आप ये बोहर मैग्नेटोन है और वैसे भी एनीथिंग विच इज मल्टीपल ऑफ बोहर मैग्नेटोन इज मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट में बोहर मैग्नेटोन साथ में डब्ल्यू फैक्टर साथ में एस स्टार, लेकिन म्यू सफिक्स एल में बोहर मैग्नेटोन साथ में सिर्फ एल स्टार है. सो कंपोनेंट ऑफ म्यू सफिक्स एल अलोंग जे स्टार, ये म्यू सफिक्स एल है, ये म्यू सफिक्स एल है, ये म्यू सफिक्स एस है. म्यू सफिक्स एल का जो कंपोनेंट है अलोंग जे स्टार हमें देखना, जे स्टार वाली ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन यानी ये वर्टिकल, और आप देखेंगे ये एंगल, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है. समझाने के लिए बता देता हूँ, ये एंगल कितना है एल स्टार जे स्टार, तो ये एंगल भी कितना होएगा, दिस एंगल इज व्हाट स्टूडेंट, व्हाट इज दिस एंगल एल स्टार जे स्टार वर्टिकली अपोजिट, दिस इज आल्सो एल स्टार जे स्टार. तो म्यू सफिक्स एल का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग कितना आएगा, म्यू सफिक्स एल का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग कितना आएगा, ये म्यू सफिक्स एल है, म्यू सफिक्स एल का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग कितना आएगा, म्यू सफिक्स एल जिधर एंगल बनता है उधर क्या आता है कोस, म्यू सफिक्स एल कोस और ये एंगल बिटवीन दीज टू, और एंगल ये कितना था एल स्टार जे स्टार, तो यही लिखा ना कोस एल स्टार जे स्टार, और म्यू सफिक्स एल तो साथ है ही, और म्यू सफिक्स एल की जगह क्या लिख देंगे एल स्टार इनटू बोहर मैग्नेटो. इसी प्रकार से कंपोनेंट ऑफ म्यू सफिक्स एस इस लाइन के साथ वर्टिकल के साथ, इस वर्टिकल के साथ म्यू सफिक्स एस का कंपोनेंट कितना आएगा, उसके लिए आपको ये एंगल देखना पड़ेगा. ये मैं हटा देता हूँ आपको समझाने के लिए किया था. ओके नाउ आई शेल, अब ये देखिए ये वाला एंगल जो है ये एंगल, तो ये एंगल कितना होगा, इस लाइन की सीध में ये वाली चीज होगी और ये वर्टिकल हो गया. ये एंगल देखो कितना है, ये एंगल कितना स्टूडेंट, ये एस स्टार है और ये लाइन जे स्टार, तो ये एंगल कितना है एस स्टार जे स्टार, तो ये एंगल भी कितना हुआ स्टूडेंट, ये एंगल भी तो एस स्टार जे स्टार हुआ. तो म्यू सफिक्स एस का कंपोनेंट वर्टिकल के साथ कितना हुआ, म्यू सफिक्स एस का कंपोनेंट वर्टिकल के साथ कितना हुआ, जिधर एंगल बनता है उधर कंपोनेंट क्या आता है कोस, कोस और एंगल ये कितना है, ये एंगल कितना बताया था एस स्टार जे स्टार, तो कोस एस स्टार जे स्टार कंपोनेंट किसका है म्यू सफिक्स एस का, और म्यू सफिक्स एस किसके बराबर लिखा है 2s स्टार, आगे तो फिर बोहर मैग्नेटोन है. तो इसका मतलब ये हो गया कि इस वर्टिकल के साथ म्यू सफिक्स एल का कंपोनेंट भी है, जो कि ये इस वर्टिकल के साथ म्यू सफिक्स एस का कंपोनेंट भी है, जो कि ये है. अब मैं ये हटा देता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था. आई शैल इरेज दिस, और डायग्राम को हम कंप्लीट कर देते हैं. ये मार्कर से ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, तो ये जे स्टार का डायरेक्शन था, और ये जो डायरेक्शन जे स्टार के अपोजिट डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये जे स्टार के अपोजिट जो डायरेक्शन देख रहे हैं वो म्यू जे का है, और ये कौन बनाए थे, ये कौन बनाया था. ये डायग्राम आप बड़े ध्यान से बना लेंगे, ये डायग्राम को बहुत ही ध्यान से बनाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, स्पेशली व्हेन वी प्रोसीड टू डिराइव लैंडर स्प्लिटिंग फैक्टर. अब आपने देखा म्यू सफिक्स एस का कंपोनेंट भी इस वर्टिकल के साथ, म्यू सफिक्स एल का भी कंपोनेंट इस वर्टिकल के साथ, दोनों कंपोनेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे. सो एडिंग व्हाट वी गेट दिस प्लस दिस, और लिटरली एच और 4 पाई एम सफिक्स ई कॉमन ले लिया राइट साइड में, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर मैंने ले लिया 2s स्टार कोस एस स्टार जे स्टार प्लस एल स्टार कोस एल स्टार जे स्टार, और ये जो दोनों ऐड करके आए ये म्यू सफिक्स जे को बना देंगे. तभी तो मैंने बोला
कि म्यू सफिक्स जे के साथ कौन से पैरेलल कंपोनेंट हैं, एक तो म्यू सफिक्स एल का, एक म्यू सफिक्स एस का. सो म्यू सफिक्स जे इज a sum of these two components of mu L and mu J. तो स्टूडेंट नॉर्मलस जीमन फैक्ट में हम लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर की डेरिवेशन कर रहे हैं और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं अभी भी बता रहा था, इसीलिए मैंने अभी डायग्राम को रिटेन किया हुआ है, मैंने रब नहीं किया, इरेज नहीं किया. फिर समझाता हूँ. जे स्टार के अपोजिट म्यू सफिक्स जे, एस स्टार के अपोजिट म्यू सफिक्स एस, एल स्टार के अपोजिट म्यू सफिक्स एल. तो ये देखिए, ये म्यू सफिक्स एल का ये प्रिसेशन और म्यू सफिक्स एस म्यू सफिक्स एल से बड़ा दिखाएंगे. और ऐसे केस में ये म्यू सफिक्स एल, ये म्यू सफिक्स एस, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये रिजल्टेंट म्यू सफिक्स एल एस. लेकिन आप ये ध्यान दें, म्यू सफिक्स एल एस की डायरेक्शन ये है और म्यू सफिक्स जे की डायरेक्शन ये है, ये जो कि जे स्टार के अपोजिट है. दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है. कहना पड़ा वेक्टर म्यू सफिक्स एल एस नॉट इक्वल टू वेक्टर म्यू सफिक्स जे. और अभी हमने बताया था कि जो म्यू सफिक्स जे जो है किसके बराबर होगा, एक तो ये वेक्टर म्यू एल का कंपोनेंट जे की डायरेक्शन में और एक वेक्टर म्यू एस का कंपोनेंट जे के अलोंग, यानी म्यू जे के अलोंग. तो म्यू एल का कंपोनेंट म्यू जे के साथ, म्यू एस का कंपोनेंट म्यू जे के साथ. तो म्यू एल का कंपोनेंट क्या था, म्यू एल का कंपोनेंट म्यू एल का कंपोनेंट म्यू जे के साथ क्या था, ये. म्यू एस का कंपोनेंट म्यू जे के साथ कौन सा था, ये वाला, यही लिखा. तो म्यू जे को बनाने वाले कौन है, कंपोनेंट ऑफ म्यू एल अलोंग जे, कंपोनेंट ऑफ म्यू एस अलोंग जे, जो कि ये मैंने लिख दिए थे और कॉल कर दिया था इक्वेशन नंबर 1. ये आगे आपको बता दें, वेक्टर म्यू सफिक्स जे माइनस जी सफिक्स जे लिटिल ई और 2m सफिक्स ए वेक्टर जे, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है या इनर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर. ये मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यानी ये म्यू जे वेक्टर है जो कि जे के साथ एसोसिएट है. और माइनस का मतलब थीटा इज 180. माइनस मीन रिवील देयर डायरेक्शन इज अपोजिट टू ईच अदर. ये देखिए जे ऊपर है तो म्यू जे नीचे है. दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन. और अगर आप मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो फिर माइनस हट जाएगा. ये वेक्टर फॉर्म है. जे स्टार वेक्टर जे किसके बराबर होता था, जे स्टार एच और 2 और माइनस साइन हट गया क्योंकि मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं. और जे स्टार इज रूट जे इंटू जे प्लस 1. तो म्यू सफिक्स जे मैग्नीट्यूड यानी स्केलर फॉर्म म्यू सफिक्स जे की क्या आ जाएगी, जी सफिक्स जे, जे स्टार, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए ई एच और 4 सफिक्स. ये क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन. तो इसका म्यू सफिक्स जे एक तरीके का क्या हुआ, जी सफिक्स जे स्टार इंटू बोर मैग्नेट्रॉन. कॉल दिस एज नंबर 2. अब दोनों को कंपेयर करो, ये भी म्यू सफिक्स जे का एक्सप्रेशन है, ये भी म्यू सफिक्स जे का एक्सप्रेशन है. इसमें भी लिटिल एच और 4 सफिक्स है, इसमें भी लिटिल एच और 4 सफिक्स है. तो इसका मतलब फैक्टर विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो किसके बराबर हुआ, जी सफिक्स जे इनटू जे स्टार. तो जब मैंने आइडेंटिफाई किया, कंपेयर किया, कंपैरिजन ऑफ 1 and 2 will give me what, this. अब मुझे cos L स्टार जे स्टार और cos S स्टार जे स्टार बताना है. अब देखिए ये L स्टार जे स्टार है एंगल दैट जे स्टार एंड L स्टार मेक. S स्टार जे स्टार क्या है, एंगल दैट जे स्टार एंड S स्टार मेक. आपके पास L स्टार जे स्टार है, ये L स्टार जे स्टार है. तो ये एंगल जो है L स्टार और जे स्टार ये एंगल बनाते हैं L स्टार जे स्टार. अब ये ट्रायंगल बन रहा है, कोसाइन लो आपको आता है. जिन दो साइड के बीच में एंगल बनता है उन साइड के स्क्वायर का सम यानी L स्टार स्क्वायर प्लस जे स्टार स्क्वायर माइनस एंगल के सामने वाली साइड. ये साइड कितनी है, ये साइड कितनी है स्टूडेंट, S स्टार. तो L स्टार स्क्वायर प्लस जे स्टार स्क्वायर माइनस S स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ दोस टू साइड बिटवीन व्हिच एंगल इज टू बी फॉर्म यानी 2 टाइम L स्टार जे स्टार. इसी प्रकार cos S स्टार जे स्टार, ये देखिए ये ट्रायंगल ये S स्टार जे स्टार है. cos S स्टार जे स्टार को साइन लॉ से निकाल सकते हैं. जिनके साइड एंगल बनता है S स्टार स्क्वायर प्लस जे स्टार स्क्वायर माइनस एंगल के सामने वाली साइड ये यानी क्या L स्टार स्क्वायर divided by 2 time product of those two sides between which angle is formed. लेकिन इस डायग्राम में स्टूडेंट आप नोट करें प्रिसेशन ऑफ म्यू सफिक्स एल एंड प्रिसेशन ऑफ म्यू सफिक्स एल
and precession of mu suffix s about mu suffix j या j star is much more rapid than precession of total magnetic moment mu suffix ls. So वेक्टर म्यू सफिक्स, क्योंकि वेक्टर म्यू सफिक्स ls जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से। मेरा मतलब म्यू सफिक्स एल म्यू सफिक्स एस दोनों की प्रिसेशन रेपिड है अबाउट जे स्टार एज कंपेयर टू प्रिसेशन ऑफ म्यू सफिक्स एलएस। और आप देखेंगे म्यू सफिक्स वेक्टर एलएस जे की सीध में नहीं है, टिल्टेड है, इंक्लाइंड है, यानी म्यू सफिक्स वेक्टर एलएस इज नॉट एंटी पैरेलल टू म्यू जे। हाँ, ये म्यू जे तो जे के एंटी पैरेलल है, लेकिन म्यू सफिक्स एल इज नेवर एंटी पैरेलल टू जे स्टार। और तो उसके बाद आप देखेंगे कंपैरिजन हम कर रहे थे, ये क्वेश्चन आ रही थी कंपैरिजन में, और ये कॉस दोनों के लो, दोनों कोसाइन लॉ से हमने अभी बताया डायग्राम से, इनको हमने यहाँ यूज कर दिया, तभी मैंने डायग्राम अभी तक नहीं हटाया। तो इसकी वैल्यू याद रखिए, इसकी वैल्यू को यहाँ रखिए, आगे देख लो, ये वैल्यू यहाँ गई, ये वैल्यू यहाँ गई। जे स्टार जी सफिक्स जे किसके बराबर आ जाएगा, ये एल स्टार गायब, ये एस स्टार से एस स्टार कैंसिल, और 2j स्टार एलसीएम, ये देखो एल स्टार कैंसिल, एस स्टार कैंसिल। प्लीज इसको 2 को कैंसिल मत करेंगे, 2j स्टार हमने एलसीएम ले लिया तो ऊपर ये बन गया, और ये 2 इंटू ये आ जाएगा। फिर जे स्टार के प्लस 2j स्टार के हमने ऐसे लिखा, 3j स्टार के मत करिए, जे स्टार के प्लस 2j स्टार के प्लस एल स्टार के माइनस एस स्टार के, ये 2 इसके साथ, ये 2 इसके साथ, और नीचे 2j स्टार, और ये जे स्टार के प्लस 2j स्टार के, और माइनस एस स्टार के प्लस 2s स्टार के कितना, प्लस एस स्टार के, प्लस एल स्टार के माइनस 2l स्टार के कितना, माइनस एल स्टार के, ओवर 2j स्टार, और तो जे स्टार नीचे आ गया, तो जी सफिक्स जे यानी लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर किसके बराबर, जे स्टार नीचे आ गया, तो 2j स्टार पहले था, जे स्टार नीचे, तो 2j स्टार के। देयरफॉर ये अब 2j स्टार के इसके नीचे भी है और इन तीनों के नीचे भी है, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। 2j स्टार के इसके बिलो भी है, इसके भी बिलो है, तो ये क्या आ जाएगा, 2j स्टार के और 2j स्टार के इज 1 प्लस j स्टार के प्लस s स्टार के माइनस l स्टार के और 2j स्टार के। j स्टार के क्या था, j into j plus 1, s स्टार के s into s plus 1, l स्टार के l into l plus 1, j स्टार के j into j plus 1। ये है लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर का फार्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर इवैल्यूएटिंग न्यूमेरिकल कंसर्न विद एनोमलस जीमन इफेक्ट। जी सफिक्स जे याद करने का तरीका, जय श्री लंकेश की 2 बार जय, जय पॉजिटिव का भाव है, श्री पॉजिटिव का भाव, लंकेश नेगेटिव भावना के माइनस, प्लीज ध्यान दें पहले दोनों पॉजिटिव बाद में नेगेटिव आएगा, over 2j into j plus 1, very important formula। ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, derive expression for Lande splitting factor in anomalous Zeeman effect। ये डायग्राम जब तक नहीं बनेगा ये डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी डायग्राम में बराबर हम संकेत कर रहे थे कि म्यू एस का कंपोनेंट म्यू जे के लॉन्ग, म्यू एल का कंपोनेंट म्यू जे के लॉन्ग, दोनों कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं म्यू जे। ये है, पहले आपको म्यू एल का एक्सप्रेशन लिखना है, म्यू एस का एक्सप्रेशन लिखना है, म्यू जे का एक्सप्रेशन लिख के कंपेयर करेंगे, कोसाइन लॉ लगाएंगे, वो डेरिवेशन हो जाएगा, सिंपल डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर की डेरिवेशन करवाई, लिटिल जी सफिक्स जे, इसको लैंडे जी फैक्टर बोलते हैं। अब आगे एनोमलस जीमन इफेक्ट में जो स्टडी है वो ये है कि अगर हम 2 केसेस में, हम फिजिक्स कैसे हम पढ़ाते हैं केसेस में, इफ एटम इज नॉट इन मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो जीमन इफेक्ट में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, वो भी नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड वीक। अब वीक है तो किसके कंपैरिजन में वीक, वो बताने लगा। इफ एटम इज नॉट इन मैग्नेटिक फील्ड then L star and S star they will precess around their resultant J star। जब बाहर से कोई फील्ड नहीं लगा, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि फील्ड नहीं है, फील्ड एक और फील्ड होता है विच इज इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट यू नो। आपने जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी पढ़ा था, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करता है, और उस ऑर्बिटल मोशन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके अराउंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इंटरेक्ट करता है, याद आया ना, इनर मैग्नेटिक फील्ड हो गया।
अब एक एक्सटर्नल फील्ड होता है, एक इनर मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों को हम केसेस में स्टडी करेंगे। पहले हम इनर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जब हम बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाते तो उस वक्त एल स्टार और एस स्टार प्रिसेस तो करते हैं अबाउट द रिजल्टेंट जे स्टार बिकॉज ऑफ इनर मैग्नेटिक फील्ड। While if an atom is placed in external magnetic field of uniform intensity या uniform strength, यानी homogeneous magnetic field external अगर हम लगाएं capital vector B, then it precesses J star की फिर precession होगी। जब हम external field लगाएंगे तो it precesses about direction of magnetic field which is known as outer precession। तो दो तरह के precession हो गए, एक inner precession, एक outer precession। inner precession होता है जब हमने बाहर से field नहीं लगाया, तब एल स्टार एस स्टार की प्रिसेशन है जे स्टार के वो, और जब हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो जो प्रिसेशन होगी वो आउटर प्रिसेशन विल बी देयर। although an atom as a whole precesses about it although an atom precesses as a whole precesses about it, still the nature of precession of the constituent vectors will depend upon strength of external field as compared with that of the field in interior of atom। फिर मैं बता रहा हूं, although an atom as a whole precesses about it, still the nature of precession of the constituent vectors will depend upon strength of external field as compared with that of field in interior of atom। यानी दो केसेस हम स्टडी करेंगे। पहला केस, if external field strength is small as compared with internal field, if external field strength is small as compared with internal field, यानी external field की वैल्यू बहुत बहुत कम है as compared to internal field, तो उस केस में जब एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ है ही बहुत बहुत कम, तो उस केस में कपलिंग बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार इज इंटैक्ट, यानी एल स्टार और एस स्टार के बीच में कपलिंग बनी रहेगी और उसके वजह से दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और एल स्टार एस स्टार एक कंपाउंड हो जाएंगे, एक मिल जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और वो बना देंगे जे स्टार। ध्यान दें स्टूडेंट, अगर एक्सटर्नल फील्ड स्मॉल एज कंपेयर्ड विद इंटरनल फील्ड तो फिर कपलिंग बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार इज इंटैक्ट। So combining L star and S star into J star and then considering precession of J star about magnetic field has a meaning। तो J star की precession magnetic field के about meaningful कब होती है? जब external field जो है weak हो as compared to internal field, जैसे कि जीमन इफेक्ट में, हम जीमन इफेक्ट में कहते हैं कि external field is weak, लेकिन किसके कंपैरिजन में? इनर फील्ड के, ताकि कपलिंग बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार मेंटेन रहे और उनका कंबाइन होकर वो जे स्टार बनाए और जे स्टार की प्रिसेशन फिर फील्ड के अबाउट हो, तब उसका मीनिंग है। लेकिन ऑन द अदर हैंड केस नंबर 2 देखिए, इफ ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ इज लार्ज इनफ कंपेयर्ड विद इंटरनल फील्ड, फिर फील्ड बाहर वाला फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जैसे कि पास एंड बैक इफेक्ट में हम बताएंगे। कंपैरिजन देखिए, इफ एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ इज लार्ज एज कंपेयर्ड विद इंटरनल फील्ड, देन कपलिंग बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार इज लोअर्ड एंड ब्रोकन, फिर एल स्टार और एस स्टार के बीच में कपलिंग ब्रेक हो जाएगी और उस केस में जे स्टार अपनी सिग्निफिकेंस खो देगा, जे स्टार विल लूज इट्स सिग्निफिकेंस। फिर एल स्टार और एस स्टार इंटैक्ट, कपलिंग उनके बीच में इंटैक्ट नहीं रहेगी, फिर एल स्टार की प्रिसेशन मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अलग होगी, एस स्टार की प्रिसेशन मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड अलग होगी। एल स्टार एस स्टार प्रिसेस इंडिपेंडेंटली, दे विल बिहेव इंडिपेंडेंटली, दे विल बिहेव डिफरेंटली। कब? जब बाहर का फील्ड इनर फील्ड से स्ट्रॉन्ग होगा। ये हम पैराग्राफ यूज करेंगे पास्ट एंड बैक इफेक्ट में। मैंने दोनों केसेस इकट्ठे इसलिए किए, बच्चा जीमन इफेक्ट स्टडी कर रहा है, उसके दिमाग में ये नहीं है बस वो वीक फील्ड एक्सटर्नल चल रहा है, लेकिन वीक किसके कंपैरिजन में? पास्ट एंड बैक इफेक्ट में हम कहते हैं फील्ड स्ट्रॉन्ग, लेकिन स्ट्रॉन्ग किसके कंपैरिजन में? इंटरनल फील्ड को तो याद रखो, जो कि आपने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन में पढ़ा था। सो प्रिसेशन, अब हम तो जीमन इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, ये तो मैंने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, लेकिन हम जीमन इफेक्ट में तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये वाला केस है। जीमन इफेक्ट केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 पास्ट एंड बैक इफेक्ट है। तो केस नंबर 1 एक्सटर्नल फील्ड स्ट्रेंथ इज स्मॉल एज कंपेयर्ड विद इंटरनल, यानी कपलिंग बिटवीन एल स्टार एंड एस स्टार इज इंटैक्ट। सो उस केस में एल स्टार एस स्टार विल कंबाइन इनटू जे स्टार, यही है ना। तब जे स्टार की प्रिसेशन अराउंड वेक्टर बी इज, जे स्टार की प्रिसेशन अराउंड वेक्टर बी क्यों है, किस वजह से है? अपने आप तो प्रिसेशन में रोटेशन, रोटेशन में टर्निंग यानी टॉर्क होगा। तो प्रिसेशन और जे स्टार आपने आर्टिकल +2 में पढ़े हुए हैं, जब भी कभी कोई डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर टॉर्क लगाता है। तो प्रिसेशन ऑफ जे स्टार अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इज रिजल्ट ऑफ ए टॉर्क ऑन बोथ एल स्टार एज वेल एज एस स्टार।
जे स्टार की प्रिसेशन, पहली बात फील्ड वी किसके कंपैरिजन में, इनर फील्ड, उससे क्या होगा, एल स्टार की कपलिंग इंटैक्ट, दे विल कंबाइन गिव जे स्टार, और जे स्टार की प्रिसेशन बी के अबाउट, किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से, टॉर्क किस किस पे लग रहा है, ऑन बोथ एल स्टार एंड एस स्टार। सो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन अनोमलस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, आपने अभी जायरोमैग्नेटिक रेशियो देखा, म्यूएल और पीएल का फार्मूला देखा, ई ओवर टू एम ई, म्यूएस और पीएस का फार्मूला देखा तो 2 ई ओवर 2 एम सफिक्स ई, वहां स्पिन जी फैक्टर जिसकी वैल्यू रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से 2 थी, यही वजह। So due to electron anomalous spin magnetic moment, S star tends to precise twice. S star tends to precise twice as fast around magnetic field as it does L star. If field is not too strong, क्योंकि G-man effect में मैं बार बार कह रहा हूँ field is weak, यानी field is not too strong. Therefore coupling between L star and S star maintain रहेगी, intact रहेगी, यानी L star और S star के बीच में coupling is strong to maintain a constant J star. So that resultant जो होगा J star that will precess around magnetic field with a compromised angular velocity, और वो angular velocity और precession का फार्मूला हम लार्मर थ्योरम से बताते थे, जिसका फार्मूला था न्यू सफिक्स कैपिटल L इक्वल टू लिटिल e कैपिटल B ओवर 4 पाई m सफिक्स E. So finally student, लार्मर थ्योरम की स्टेटमेंट फिर रिमाइंड करवा दें आपको, विच सेज दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन को निकालने के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, एक तो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैकेनिकल मोमेंट। मैकेनिकल मोमेंट का दूसरा नाम है टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर वेलोसिटी प्रिसेशन बाय लार्मर थ्योरम इज इक्वल टू फील्ड स्ट्रेंथ times ratio of magnetic moment to mechanical moment. So precessional angular velocity omega suffix capital L is product of magnetic field into mu suffix j और p suffix j. जो पहले हमने लार्मर थ्योरम करवाई थी उसमें हमने mu suffix L और p suffix L था, लेकिन इस वक्त जो है जीमन इफेक्ट की बात हो रही है। ध्यान दें, जीमन इफेक्ट जब हम स्टडी करते हैं वीक मैग्नेटिक फील्ड के केस में L और S की कपलिंग जो है वो इंटैक्ट होती है। L और S से ये कंपाउंड होके J स्टार बनता है, J स्टार की प्रिसेशन B के अबाउट, L स्टार की प्रिसेशन J के अबाउट, S स्टार की प्रिसेशन J स्टार के अबाउट, L और L स्टार S स्टार दोनों की प्रिसेशन J स्टार के अबाउट, लेकिन J स्टार की प्रिसेशन B के अबाउट है। इसलिए क्योंकि जीमन इफेक्ट की स्टडी हो रही है, तो जीमन इफेक्ट, एनोमलस जीमन इफेक्ट में वीक मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड व्हिच इज कैपिटल B, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और म्यू जे पी सफिक्स जे की रेशियो, यानी जीमन इफेक्ट में जब हम लार्मर थ्योरम बताएंगे तो ये डेफिनेशन है लार्मर थ्योरम। और जब उन्हें जीमन इफेक्ट नहीं स्टडी किया था तब म्यू एल और पी एल सफिक्स एल था, तब तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट था और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, वहां पे ऑर्बिटल जी फैक्टर आया होगा, ऑर्बिटल जी फैक्टर इज स्टूडेंट 1, लेकिन यहाँ पे तो G suffix J की बात हो रही है, Landis splitting factor, energy of precession is calculated in same way as we did while studying spin orbit interaction. Spin orbit interaction में हमने spin orbit interaction energy कैसे निकाला था, अगर आप रिकॉल करें, मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। It is given by product of omega suffix L and component of mechanical moment along the field direction. ये J star है, J star mechanical moment है, इसका जो component है V की डायरेक्शन में, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है दिस इज एनर्जी ऑफ प्रिसेशन, इट इज प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा सफिक्स एन एंड क्या लिखा हुआ कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट किसका, मैकेनिकल मोमेंट का, यानी एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट, यानी जे स्टार का कंपोनेंट इसके ऊपर, यानी जे स्टार, यहाँ जे स्टार HO2 पाई है, जे स्टार अगर ये जे स्टार HO2 पाई है तो ये m सफिक्स J HO2 पाई है, अगर इधर HO2 पाई तो इधर भी HO2 पाई, तो ये J स्टार HO2 पे के इधर कंपोनेंट कितना है, ये एंगल कितना है स्टूडेंट, J स्टार B, तो cos ब्रैकेट J स्टार B, तो J स्टार HO2 पे इनटू cos J स्टार B, और ये बता दें प्रोजेक्शन ऑफ टोटल मैकेनिकल मोमेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस, J स्टार का मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, J स्टार को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे J स्टार cos ऑफ J स्टार का, इस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ये प्रोजेक्शन क्या होगा J स्टार का B के ऊपर, J स्टार cos J स्टार B which is m suffix J which is magnetic, total magnetic quantum number. So
ओमेगा सफिक्स एल की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 20 जी सफिक्स जे और 2me, साथ में ये एज इट इज कैपिटल बी, ये एज इट इज जी सफिक्स जे एज इट इज, और जे स्टार और कॉस जे स्टार भी किसके बराबर है एम सफिक्स जे, और साथ में एच और 2 पाई। देयरफॉर एनर्जी ऑफ प्रिसेशन इसमें किसके बराबर आ जाएगा एम सफिक्स जे जी सफिक्स जे। टर्म्स को रीअरेंज किया और ये 4 पे एम सफिक्स ही आ गया, एम सफिक्स जे जी सफिक्स जे। ये आप जानते हैं ना, लार्मर थ्योरम के मुताबिक न्यू सफिक्स एल था। जब मैंने जो ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर किया था तो न्यू सफिक्स ये ई लिटिल ई बी और 4 पे एम सफिक्स ई लार्मर फ्रीक्वेंसी और ये एच। एंड स्टूडेंट एम सफिक्स जे के बारे में बताऊं, फॉर गिवन जे एम सफिक्स जे की वैल्यू माइनस जे से लेके जे, सो हियर फाइंड लेवल स्प्लिट्स इनटू नंबर ऑफ डीजेनरेट लेवल्स, क्योंकि एम सफिक्स जे की टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी है 2j+1, सो anomalous Zeeman effect lifts the degeneracy, anomalous Zeeman effect anomalous Zeeman effect removes the degeneracy completely, and interaction energy in terms of wave number यानी term shift which is energy और hc, जब भी एनर्जी को हम hc से डिवाइड करेंगे तो वो वेव नंबर की टर्म में आ जाता है, यानी डेल्टा कैपिटल टी माइनस साइन, और ये डेल्टा डब्ल्यू को जब hc से डिवाइड करेंगे तो एम सफिक्स जे जी सफिक्स जे, और ये लिटिल ई बी और 4 पे एम एच एच कैंसिल हो गया। ये हम सब जानते हैं लिटिल ई बी और 4 पे एम सफिक्स ई, मैंने असाइनमेंट में भी बताया था। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में लॉरेंट्ज यूनिट है, लॉरेंट्ज यूनिट इज लिटिल ई बी और 4 पे एम सफिक्स ई इनटू सी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये लिटिल ई और ये 4 और ये जो है लॉरेंट्ज यूनिट 46.7 कैपिटल बी, यूनिट इसके मीटर इनवर्स होते हैं लॉरेंट्ज यूनिट के। वैसे भी ये वेव नंबर है, वेव नंबर तो मीटर इनवर्स में डिस्क्राइब होगा। सो हियर डेल्टा कैपिटल टी इज चेंज इन एनर्जी ऑफ ईच एम सफिक्स जे लेवल फ्रॉम द ओरिजिनल लेवल। तो ये थी एनॉमलस जीमन इफेक्ट की डेरिवेशन। तो थैंक यू सो मच। आर्टिकल थोड़ा लेंथी हो गया। एक तो हमने लैंडेस स्प्लिटिंग फैक्टर की डेरिवेशन की, और एक हमने क्या डिराइव किया अपना एनर्जी ऑफ प्रिसेशन, और फिर इंटरेक्शन एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर डिराइव किया। नॉर्मल जीमन इफेक्ट में जी सफिक्स जे नहीं आता था, नॉर्मल जीमन इफेक्ट में सिर्फ एम सफिक्स जे इनटू एल था, लेकिन यहाँ पे इन टर्म शिफ्ट जो है ये है नॉर्मल जीमन इफेक्ट में एम सफिक्स जे जी सफिक्स जे इनटू एल, लेकिन नॉर्मल जीमन इफेक्ट में सिर्फ जो है टर्म शिफ्ट किसके बराबर थी एम, वहाँ एम सफिक्स एल था, क्योंकि नॉर्मल जीमन इफेक्ट में स्पिन क्वांटम नंबर 0 था। एनॉमलस जीमन इफेक्ट में सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के स्पिन है, इसलिए यहाँ पे एम सफिक्स जे will be there as well as G suffix J, दोनों प्रोडक्ट के रूप में, साथ में कैपिटल एल तो आना ही आना है। थैंक यू सो मच।